moving towards the next topic that we were talking about. Okay, so in last class we were talking about like redox reaction, right? We did a few things over there, right? We talk about how we can find it out that the oxidation and reduction is taking place. So we saw there that the gain of oxygen is oxidation. It is clear from the word, right? And the reverse is the loss of oxygen, and which will be reduction, right? And then gain of hydrogen will be reduction, and the loss of hydrogen will be oxidation, and then loss of electron will be, you know, that it is oxidation, and the gain of electron is reduction, and oxidation state increment and decrement. Today we are moving towards the rules of oxidation state, right? How can we find out the oxidation state? If you remember these rules, then you can easily find out the oxidation state, right everyone? Yes, sir. Okay, so the first rule over here is to find out the oxidation state is elemental form, right? Whenever you will see the elemental form of any substance, the oxidation state of that is zero, right? The oxidation state of that will be zero, right? For example, let's talk about examples. If you talk about examples, so iron, you will see that any metal in the equation, so you always see that they will be in the single state, right? Like this all the time in equations. Whenever we write metals in the elemental form, so they always write in the single state or monatomic, right? So the oxidation state of these are always zero when they are single, right? And if you talk about molecules like oxygen, chlorine, like fluorine, like nitrogen, they are also elemental form. अब हम क्या कर सकते हैं, वो होते ही इसी फॉर्म में, है ना? Chlorine will not be exist as a monatomic, it always in a diatomic form. So this is actually the existence state of chlorine. So whenever you find these like O2 and Cl2 in the equation, okay, so they all have zero oxidation state, right? Just remember it again. Students इसमें बहुत परेशान होते हैं. तो देखो, अगर आपके पास लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आप बिल्कुल सही होगे कि सर आपने बोला था Cl2 होगा तो जीरो होगा, ठीक है? लेकिन रिमेंबर Cl2 तो है बट अकेला नहीं है, मैग्नीशियम के साथ है. तो यहाँ पर Cl-1 होगा, एक Cl, दूसरे वाले की बात नहीं कर रहा, यहाँ दो हैं Cl बट एक Cl-1 होगा, राइट? सो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है. MgCl2, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ MgCl2 में ये कंपाउंड है तो Cl की -1 होगी, एक Cl की -1 होगी, ठीक है ना? बट क्लोरीन ही अगर लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, देन इट विल बी जीरो. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. अब इसमें ये भी परेशानी हो सकती है ना बच्चों को कि सर यार मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो चलो बच्चों को समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, इट इज क्लियर. बट अगर वो लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, Al2O3 लिखा हुआ है, या आपके पास फॉर एग्जांपल SO2 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको परेशानी हो सकती है कि सर ने बोला था O2 का जो है ना जीरो होता है. नहीं भाई, ये कंपाउंड है, ये दूसरे एलिमेंट के साथ है, तो दूसरे एलिमेंट के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेले की बात कर रहा हूँ. व्हेनेवर यू फाइंड ऑक्सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये वाली ऑक्सीजन है ना, ये अकेली है, ठीक है ना? तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, बट यहाँ नहीं होगी, ठीक है? यू नीड टू रिमेंबर दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है? एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है. दिस इज द फर्स्ट रूल. Okay, the second one is whenever we talk about the second one, so it is what? Group one, or you can say that the most important is hydrogen. So let's talk about hydrogen first. Hydrogen has +1 oxidation state, always in compounds. Again, I just write over here in compounds, right? I just write over here कि compounds में हमेशा +1 होगी. अगर H2 इस फॉर्म में है अकेला,
so it is 0. This is the elemental form of hydrogen, right? But अगर आपके पास लिखा हुआ है जैसे HCl लिखा हुआ है, so यहाँ पर हाइड्रोजन +1 होगा, ये आपको याद रखना है। जब कभी किसी और के साथ होगा तो हमेशा हमेशा उसका चार्ज +1 होगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट? हाइड्रोजन जब कभी भी किसी भी के साथ मिलेगा तो उसमें हाइड्रोजन +1 ही होगा। ये याद रख लेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन निकालना आपके लिए स्टेट आसान हो जाएगा। थर्ड वन, ऑक्सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी? -2 होगी ऑलवेज इन कंपाउंड्स। दोबारा मैं बोल रहा हूं आपको कंपाउंड्स में, ठीक है? अकेले की बात नहीं की, अकेले वाली ऊपर रूल हो चुका है। O2 की फॉर्म में होगा तो इट इज 0, बट अगर वो मैग्नीशियम के साथ है या वो क्लोरीन सोडियम के साथ है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो ऑक्सीजन की हमेशा फिक्स है -2, ये याद करना है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब आपने याद कर ली ना बच्चों, बहुत सारे कंपाउंड्स आप आराम से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है? ऑक्सीजन इज -2, हाइड्रोजन इज +1, इट इज फिक्स्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then next is very easy. We all know that group 1 always have +1 charge, right? In compounds, again I'm writing compounds ताकि आप क्लियर रहे कि मैं कंपाउंड में बात कर रहा हूँ, एलिमेंटल फॉर्म में 0 ही होगी। ग्रुप 2 हमेशा कितनी होगी बच्चों? ग्रुप 2 की +2, ये हमें पता है बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 बना लेंगे, ठीक है? उसके अलावा फिर अगर आप बात करें ग्रुप 7 की, तो ग्रुप 7 की कितनी होती है? दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, तो वो एक रिसीव करके हमेशा -1 बनाएंगे, राइट? इट इज ऑब्वियस, क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है? और एक बात प्रॉब्लम कर सकती है हमें, वो ट्रांजिशन मेटल्स की है, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स की भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर निकालने के लिए आती है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमेशा निकालने के लिए आएगी। रिमेंबर दिस, ज्यादातर उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है? ये याद रखें। अच्छा, ग्रुप 1 वाले कौन से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। NaCl है अगर आपके पास तो Na is +1, KCl है या Ki है तो K is +1, ठीक है? ग्रुप 2 वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। MgCl2 लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम is +2, CaO लिखा हुआ है तो कैल्शियम is +2। ग्रुप 7 अगर मैं देखूं तो आप इसमें देख लें, NaCl के अंदर आपके पास ग्रुप 7 का ये क्लोरीन है तो इट विल बी -1, पोटेशियम आयोडाइड में ये है तो इट शुड बी -1, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी यहाँ क्लोरीन है तो भाई ये 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन की बात करते हैं हमेशा, सो इट विल बी -1। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी बेटे। सर ये मैटर नहीं करता ना कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, मतलब जैसे क्लोरीन है उसकी हम लोग हमेशा -1 ही लिखते हैं, -2 नहीं लिखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपके पास कि उसके अंदर कितने क्लोरीन है या कितने ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लिखते हो Al2O3, ठीक है? अब यहाँ पर चार्ज निकालना है आपने, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 3 जाएगा इधर और ये 2 जाएगा इधर, सो इन दिस केस अमोनियम इज +3 एंड ऑक्सीजन इज -2। ये जो नंबर नीचे लिखे हुए होते हैं ना बच्चे, ये क्या लिखे हुए होते हैं? ये जो नंबर होते हैं सिर्फ आपको बता रहे होते हैं कि एक कंपाउंड में, यानी कि Al2O3 के एक मॉलिक्यूल में या एक आपके पास कंपाउंड में कितने एल्युमिनियम है और कितने ऑक्सीजन है। दैट इज नॉट शोइंग यू द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें बता रहा है कि इतने एटम्स एल्युमिनियम के साथ ज्वाइंट हुए हैं ऑक्सीजन के सिंबल। चार्ज हमेशा एक का निकाला जाता है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है that the sum of all oxidation states, sum of all oxidation states is equals to 0. We need to remember this also, it is very important, is equals to 0, ठीक है? अब ये क्या सीन है, इससे हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है KMnO4, राइट? KMnO4 लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये एक कंपाउंड है, ये पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, सो द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि Mn आपके पास ट्रांजिशन मेटल है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn ओवर हियर, राइट? सो पोटेशियम फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, so it should be +1 and plus
we need to find out for manganese, and plus oxygen is -2. A single atom of oxygen is -2. So we have 4 atoms, then we need to multiply it with 4. Then is equals to 0. Then when we send -8 over there, so it will be +8, and +1 over there, so it will be -1. So the oxidation state of manganese is +7. Is that clear, bacho? This statement is helping us in this. Yes. Sir, but if we have polyatomic ions, तो उनके ऊपर जो charge होते हैं वही charge होगा ना? Yes, Compound exactly. में. That is the next rule, na? Rule number 9. Okay, we are talking about the neutral one. Yes. सर मतलब कोई सा भी कंपाउंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो समय आएगा वो 0 ही आएगा. Exactly. अगर वो न्यूट्रल है तो, अगर वो आयन है तो फिर बात नहीं कर रहे हैं, हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं. आप बताएं आपके जहन में कौन सा कंपाउंड है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ. ऐसे ही पूछना. आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ना, अगर फॉर एग्जांपल, सो इट इज आल्सो इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है कार्बन की हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन इज -2, so we have 2 oxygen, so it is like this, and when we send -4 over there, so it will become +4. So the oxidation state of carbon in carbon dioxide is +4, right? ठीक है बच्चों, प्रूफ करके दिखाए ना 0 होगी. इसमें प्रूफ करने वाली बात है तो ये तो क्लियर है. देखो फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की ना, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो +4 है, अगर आपको वेरीफाई करना है, सो यू कैन पुट ओवर देयर. फॉर एग्जांपल आपने ये कार्बन की जगह +4 पुट कर दिया, एंड ऑक्सीजन इज व्हाट वी हैव, ऑक्सीजन इज O2 ना, सो इट इज व्हाट -2 into 2, so it is what +4 -4 is equals to 0. इट इज ऑब्वियस, हम फाइंड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हो तो चलो इसकी देख लो. एल्युमिनियम को तो आपको पता है ना, Al2O3 लिखा हुआ है, ठीक है. Why it is equals to 0? If you want to prove this, so we know that aluminum is from group number 3, ठीक है, and oxygen is from group number 6, ठीक है, ये आपको पता है. So it has 3 electrons to remove, so it lost 3 electrons and become +3, right? And it has 6 electrons in the outermost shell, so it will receive 2 electrons, right? तो अब देखो एल्युमिनियम कितने हैं आपके पास? 2 हैं, और ऑक्सीजन आपके पास 3 है, इज इक्वल्स टू 0. एल्युमिनियम का कितना चार्ज आपके पास निकला? 3 into 2 प्लस ऑक्सीजन का आपके पास कितना निकला बच्चे? -2 into 3, ठीक है. तो ये क्या हो गया? +6 - 6 इज इक्वल्स टू 0. हो गया प्रूफ? एनीथिंग एल्स? सर अगर कॉपर सल्फेट हो तो फिर? कॉपर की बात करेंगे तो अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट जो कॉपर है बेटे वो ट्रांजिशन मेटल है, तो उसकी आपको निकालना पड़ेगी, तो वो इसी से निकलेगी. इसी वजह से हमने रूल्स आपको बता दिए हैं सारे, कि आपको बाकी सबका पता हो, ट्रांजिशन मेटल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर आस्किंग फॉर लाइक अ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट फॉर दिस, सो वी नो दैट ऑक्सीजन इज -2 ना, so we can send oxygen over there, so it will show you the oxidation state of copper in this compound is +2. But copper can form the formula like this. So for example, if you have a Cu2 and O is -2, so you can send O over there, so it will give you what? +2 over there, and this 2 should be divided because it is showing you 2 coppers over there, so it will give you what? Copper is +1 in this compound. So copper is transition metal, so it has variable oxidation state. That means it has more than 1 oxidation state. तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बाकी सबका पता है, ठीक है ना? क्लियर बच्चों? जस्ट सर एक्चुअल में सल्फर का -2 होता है ना? वैसे हाँ, अगर आप कह सकते हैं सल्फर इज लेकिन कभी कभार +6 भी आ रहा होता है. Exactly. What is the meaning of oxidation state? Oxidation मतलब state ट्रांजिशन तो नहीं है. yes, I know that transition नहीं है, but oxidation state का मतलब क्या होता है बच्चे? Oxidation state का मतलब ये होता है the number of electrons share for the bonding, ठीक है. तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ना, उसमें क्रिएट करता है सल्फर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो शेयरिंग है, ठीक है. अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड इज समथिंग एल्स एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज समथिंग एल्स. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है. तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 जो है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं सल्फर के. बट अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड देखो तो वहां कुछ और मामला है, ठीक है. दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, राइट.
ये स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में इस वजह से ही नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो रहा, इसमें फिर इनर शेल्स आ जाते हैं और उसके अंदर जो है ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या. ऑक्सीडेशन स्टेट इज जस्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर फॉर द बॉन्डिंग. अब वो कितने भी हों और कैसे भी हों ये हमारे सिलेबस में नहीं. You just need to find out the oxidation state, और इसी वजह से वो सल्फर की बहुत कम निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर आप सल्फर की निकालेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट में अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो. इस वजह से उन्होंने सल्फर की बात नहीं की होती. इज दैट क्लियर बच्चों? Okay, sir. Thanks. And the last one is for polyatomic ions, as Vania mentioned. Whenever you are talking about ions, so the sum of all oxidation states in ion is equal to the charge of the ion, right? What is the meaning of this? So you can see that, for example, if you have nitrate, NO3 -1, right? And if you want to find out the oxidation state of nitrogen in this, that is the very consistent question in the exam. So you can easily find it out. Just write NO3 and write -1 after the is equals to sign, right? And we know that oxygen has -2 charge and we have 3 oxygens over here. So we can solve this like this, and it will be +6 over here, and it will give us +5 for nitrogen. Is that clear, bacho? Yes. Just try for this, bacho. Just try for this K2Cr2O7, right? This is the neutral compound. Just find out the oxidation state of Cr over here. K2Cr2O7. Just find out the oxidation state of Cr over here, just to check are you getting or not. Find out the oxidation state of carbon over here. Find out the oxidation state of sulfur over here. We have 3 examples. Just do it quick so we can proceed after this. Just do it quick. Just try. Find out the oxidation state of chromium, carbon, and sulfur. Is there any problem, Asna, Samin? So you can ask. And we have more student. Ashina, if you have any problems, you can ask. Farzam, Hamza, Khizar, any problem you can ask, right? सर के की जगह क्या लिखेंगे मतलब? K is from group number 1, beta. The group number 1 की charges मैंने आपको क्या बताया? +1, right? So you can put +1 over there. Done, sir. Done. What is the answer for chromium? 6. 6, very good. And what about the carbon? 4. 4. And what about the sulfur? 6. Right. Yes, the rest of all you can check the answers and you can discuss with me if you want to. I got the same. Very good, Asna. सही 2 का आंसर क्या है? Second वाले का आंसर है बेटे 4. अच्छा क्रोमियम का सबका 6 आ गया. Yes, sir. Yes, you can see even if you have any one of you problem with it. So it is +1 into 2 plus chromium we need to find out because we have 2 chromium, so we are just writing 2 over here, and oxygen is -2 into 7 is equals to 0. It is +2, chromium 2, and it is -14. So it will be 14 minus 2 will be 12, and what
it will go over there, it will be plus 12, and single chromium will be plus 6. Is that right, everyone? You can check over here for the carbon as well. It will be minus 6, and when minus 6 over here, it will give you plus 4, right? This is minus 2. Sulfate minus 2, oxygen is minus 8. We'll move over there, we'll give you plus 6 answer. ठीक है बच्चों, चलें आगे. यस सर. ठीक है जी. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. अभी हम जैसे ही इसको कवर कर लेंगे, so we need to solve past paper questions and it is very important for that. We have a few tests also over here, but before moving towards test, it is important to find out the things over here. For example, if you talk about some reactions, just look at over here. For example, just I am adding zinc in copper sulfate, bacho. So what happened? We know that zinc can displace copper because it is more reactive. So this is the reaction that is going to be happen, right? So you can see over here, zinc is in elemental form, so it is 0. Copper is in elemental form, so it is 0. And over here, if you want to find out for copper, so you can, but the easy way to write over here, we know that sulfate has minus 2 charge, so it definitely will be plus 2. Sulfate has minus 2 charge overall, so zinc should be plus 2 over here, right? Then you can see over here, plus 2 say 0. It is going to be decrease, then it is definitely what? Reduction. And you can see over here, it is from 0 to plus 2. So it is going to be what? Increase. So definitely it will be oxidation. You can define it over here as well. Zinc atom oxidized to zinc ion by loss of electron. Remember this oil rig. So by the loss of electron, right? And the secondly, you can write copper ions reduced to copper atom by gain of electron, right? Remember oil rig, gain of electrons. It's clear. Now, one more thing to understand over here, very, very important thing. हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो बच्चों, रिडक्शन कहाँ हो रही है? कॉपर सल्फेट पर. रिडक्शन कहाँ पर हो रही है? कॉपर सल्फेट पर. तो डेफिनेटली ये जिसने कराई होगी वो बराबर वाला होगा. जहां रिडक्शन होगी उसके बराबर वाला क्या होगा आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट. जहां ऑक्सीडेशन होगी उसके बराबर वाला क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिमेंबर दिस. जो सारे पॉइंट्स रिडक्शन के हैं वो सारे पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी हैं, और जो सारे रिड्यूसिंग एजेंट के पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑक्सीडेशन के भी पॉइंट होंगे. रिमेंबर दिस. सो अगर आप जी बेटे, सर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो रहा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, मतलब जी बिल्कुल यही, हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात है. यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जहां रिडक्शन हो रही है उसके बराबर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है. तो यहाँ रिडक्शन हो रही है ना कॉपर सल्फेट पे, तो इसके बराबर वाला क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? इसके बराबर वाला क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या बात आपको डिफाइन कर रहा है? ये बात आपको डिफाइन कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाते हैं बट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, oxidize itself and promote reduction. ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट करवाते क्या है? रिडक्शन. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये खुद क्या हुआ होगा? ये रिड्यूस हुआ होगा, लेकिन इसने करवाई क्या होगी? ऑक्सीडेशन. सो इट इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड द अदर वर्ड दैट यू कैन यूज फॉर देम इज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. You can use the word also oxidant and reductant. ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये, जहां रिडक्शन हो रही है उसके बराबर वाला जो है रिड्यूसिंग एजेंट है,
और जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसके बराबर वाला आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अगर आपके ये समझ में नहीं आता तो आराम से आप ये याद रख सकते हैं कि जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसका उल्टा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो। जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हो रही है वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फातिमा ने कहा कि वो खुद रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइज कराता है या वो खुद ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस कराता है। ठीक है, तो चलें जरा एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कहां तक बात पहुंची, समझ में आई या नहीं। ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, हम लिख देते हैं पोटेशियम, हमारे पास है आयोडाइड, हमने इसमें डाल दी ब्रोमीन गैस। तो हम देखेंगे कि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव सो इट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय ब्रोमीन, और हमारे पास इस तरह का कोई रिएक्शन बन गया। ठीक है, अब हमें पता है हम ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इट इज इजियर बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ब्रोमीन 0 होगा, और यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ 2 नहीं लगेगा, 2 यहाँ लगेगा। तो आयोडीन भी 0 है और ब्रोमीन भी 0 है। ठीक है ना, और हमें पता है ये ग्रुप 7 के हैं तो इनके चार्जेस कैसे होंगे कंपाउंड्स में, -1। पोटेशियम का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। सो इफ यू वांट टू राइट आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस, सो इवन यू कैन राइट आयोनिक इक्वेशन एज वेल। यहाँ पर आप हाफ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए, आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट। तो ये हाफ इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये हो गया आपके पास इंक्रीज। सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो आंखें बंद करके लिख सकते हो दिस इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो ये है भाई। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या हो रही है, आप देखें इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज व्हाट, रिडक्शन हैपनिंग ओवर हियर। सो आप आंखें बंद करके क्या लिख सकते हो, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस उल्टा है, ये आपने याद रखना है। और पेपर में एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं, तो याद रखो जितनी चीजें ऑक्सीडेशन की है ना, जितनी चीजें, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये चारों चीजें ही रिड्यूसिंग एजेंट की भी होंगी। और जितनी रिडक्शन की हैं, जैसे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सारी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आसान है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जो हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं वही 4 पॉइंट याद करोगे, वो चारों चीजों के लिए हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ, देखो आपको पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। सिर्फ ये याद कर लो, 4 ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर इसका उल्टा क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 चीज आपको याद होंगी तो आप रिडक्शन के भी निकाल सकते हो इसके उल्टे। यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, डिक्रीमेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन का होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट का भी मामला होगा, और जो ये रिडक्शन इंक्रीमेंट का क्या हो होगा, रहा है? इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बस ये इस तरह याद करना है आपने। तो कभी कभार इस तरह भी आपके एमसीक्यू में काम आ जाएगा। सिर्फ 4 याद करो शुरू वाले, बाकी सारे खुद ब खुद ही बना लोगे आप। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला आपके पास जो पार्ट है वो है आपके पास वो ब्लास्ट फर्नेस वाला ना। तो अगर आपके पास आयरन ऑक्साइड है और आप उसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करा देते हो तो आपके पास आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह पूछते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इट इज व्हाट, रिडक्शन, और ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ आपके पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो ये क्या हुआ बच्चे, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ होगा बच्चे आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये करना है आप लोगों ने बस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आती है। उसके अलावा आपके पास आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप कार्बन से रिएक्ट कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये भी बहुत आती है, ये भी ब्लास्ट फर्नेस की ही है, रिड्यूसिंग एजेंट बनाने का तरीका। तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन ने ऑक्सीजन लॉस कर दी, दिस इज व्हाट, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको आप ऑक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। इस वाले कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर ली, तो यहाँ पर क्या हो गई बच्चे, ऑक्सीडेशन,
तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई ब्लास्ट फर्नेस के प्रोसेस में कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज हुए हैं। तो ये दोनों इक्वेशन वहाँ की हैं, वैसे तो 5-6 इक्वेशन हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इन दो इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सिर्फ दो रिड्यूसिंग एजेंट है जो ब्लास्ट फर्नेस में यूज हुए हैं, कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको निकालना आनी चाहिए। और मैंने कल एक होमवर्क दिया था, उसके अंदर मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों देखो, जब आपके पास कैल्शियम यहाँ है तो +2 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ कैल्शियम +2 -2 और ऑक्सीजन -2। कार्बन की निकाल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 0, इट इज +2। कार्बन की कैसे निकलेगी भाई, -2 × 3, सो इट विल बी 0। सो ये हो गया आपके पास कार्बन इज इक्वल टू 4। तो देखो कार्बन की यहाँ पर कितनी है, 4 है। और यहाँ अगर आप कार्बन की देखो तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो ये भी 4 है ना, तो यहाँ पर भी 4 है। सो यू कैन सी ओवर देयर दैट देयर इज नो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट ओवर हियर। सो यहाँ ना ऑक्सीडेशन हो रही है, ना ही यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, it is not a redox reaction. You can simply write not a redox reaction. और आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि और कौन कौन से ऐसे इक्वेशंस हो सकते हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि रिडॉक्स नहीं है। सो रिमेंबर, एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन हो गई, दिस इज व्हाट थर्मल डीकम्पोजिशन, जो कि आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है बच्चों आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन में, आप देखोगे सॉल्ट फॉर्मेशन में आपके पास होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। एक मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड। ये मेथड जो है इसमें आपके पास जो इक्वेशन होगी वो भी रिडॉक्स नहीं होगी, और एक आपके पास होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हम एसिड और बेस में पढ़ेंगे तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट AgNO3 और इसमें हम डाल दें NaCl, तो आप देखोगे आपके पास बनेगा ये जो आपके पास आइंस हैं, दे जस्ट डिस्प्लेस देयर सेल्फ्स, तो ये यहाँ पर हो जाएगा और वो वहां पर हो जाएगा। तो आइंस अपनी जगह पर मौजूद हैं, सारे वैसी के वैसी हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस उन्होंने अपने पार्टनर्स को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो प्रेसिपिटेशन मेथड भी इज नॉट अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन में भी सेम होता है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है आपके पास, सॉल्ट और वाटर बनता है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर भी आइंस जस्ट चेंज हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए और कुछ भी नहीं हुआ है। तो these three reactions like thermal decomposition, precipitation methods and neutralization reaction, ये तीनों redox नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल जाएगा देखते जब आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ेंगे। अभी तो आप रिडॉक्स पढ़ लें, आगे आप सॉल्ट्स पढ़ेंगे दोबारा से। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनके लिए दोबारा हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट। और आगे हम एसिड बेस का चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है। तो लफ्ज से परेशान ना हो और इक्वेशन पे सोचें कि ये इक्वेशन में देखें सिर्फ आइंस चेंज हुए हैं, अगर Cl यहाँ पर है तो यहाँ आ गया, दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ है तो +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो यहाँ कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। यहाँ सोडियम +1 है तो यहाँ पर भी सोडियम +1 है, नाइट्रेट -1 है तो यहाँ नाइट्रेट -1 है, सब कुछ एज इट इज है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो ये, और प्रेसिपिटेशन मेथड जो है ये रिडॉक्स नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। Can you send me the recording after class? I'll have to leave the meeting now. Okay, Asna, no problem. You can leave. I just have the task to complete. So almost the topic is complete. You can leave, no issue. Okay, so the last thing is test for oxidizing agents and reducing agents. We have only two tests, right? Test for oxidizing agent and test for reducing agent, right? We have KMnO4. This is what? Potassium permanganate, the strong oxidizing agent. This is the strong oxidizing agent, right? We can test this by any reducing agent. For example, if you want to check that the substance is reducing agent or not, or the substance is like oxidizing agent or not, so you can use this, right? KMnO4. It has the purple color,
and it will change into purple to colorless, right? And the equation is shown, you can see this, KMnO4 क्या बन जाएगा बच्चे, Mn+2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले Mn का चार्ज निकाला था, it will be like +7 था शायद, और यहाँ +7 से +2 हो गया, तो ये रिडक्शन हो जाती है इसकी, इस वजह से कलर चेंज हो जाता है। और अगर आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट से कुछ किसी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड इट इज सॉल्ट ऑफ पोटेशियम ऑफ ग्रुप नंबर 1, सो डेफिनेटली इट इज कलरलेस। ग्रुप 1 के सारे सॉल्ट्स कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको टेस्ट करोगे तो ये बनाएगा आयोडीन गैस, डेफिनेटली आयोडीन गैस इज ब्राउन इन कलर, वी नो दैट। सो यहाँ पर कलर चेंज आपको ये नजर आएगा, इट इज -1 एंड इट इज 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या वहां आप चेक करना चाह रहे हो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में एक और था पहले, वो कर चुका है, तो बस ये दो रह गए। पोटेशियम आयोडाइड कैन बी यूज्ड एज अ reducing agent to check any oxidizing agent, or KMnO4 can be used as an oxidizing agent to check any reducing agent, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay, so just have a review of this, what we were talking about in the recent things. The first thing that you need to understand is this: oxidation. This is the gain of oxygen, loss of hydrogen, loss of electron, and increment in the oxidation state. And it is the reverse completely for reduction: removal of oxygen, addition of hydrogen, gain of electron, and decrement in the oxidation state. अगर आप ये चार याद कर लें, so you can find out the definition of reducing agent, you can even find out the definition of oxidizing agent. और फिर आप आराम से ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल सकते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल सकते हैं। दिस इज द फसाद की जड़ ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बस ये जो लाइन, ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, ये आयरन वाली, इस एग्जांपल में चारों चीजें, ठीक है, और उसके रीजंस भी हैं, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में भी। आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो, रीजन में लिख सकते हो, बट यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्लियरली नजर आ रहा है, तो ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन क्लियरली नजर आ रहा हो, लॉस होता हुआ या गेन होता हुआ, तो वो रीजन लिख दो। अगर नहीं आ रहा है तो ऑयल रिग वाला यूज करते हुए डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, दैट्स इजी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपके फाइंड आउट करना सिखाइए, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए, ताकि अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना हो, तो उसमें फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब आप निकाल लेंगे, तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ये है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसी में आपको परेशान करके रखे जाएगा। तो ये जो पेज मैंने इस वक्त खोला हुआ है, अगर आप ये कर लेते हो ना, तो आप समझ लो आप सब कर सकते हो, पूरा रिडॉक्स कर सकते हो, कहीं पर भी कैसा भी सवाल आ जाए यूं कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो मुझसे, कल हम पास्ट पेपर्स करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। किसी को कुछ पूछना है, किसी भी बच्चे को टेस्ट के हवाले से, टेस्ट एटीपी में आता है इन दोनों का, तो ये 2-3 सर आप नंबर एक बार वो का टेस्ट दिखा दें। टेस्ट में KMnO4 का कलर है वानिया, और वो आपके पास KMnO4 पर्पल टू कलरलेस होता है, और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो कलरलेस टू ब्राउन होता है। पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट को करने के लिए यूज होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये तीन रिएक्शंस रिडॉक्स नहीं होते हैं,